Hello students, welcome back in English class. Today we are going to summarize the whole chapter on the face of it, and in the last we will discuss the important question for the board exam. गाइस, आज इस चैप्टर में हम आपको पूरा इंट्रोडक्शन विद समरी और द कुछ इम्पॉर्टेंट जो करेक्टर्स हैं उनके बारे में डिटेल्स से बताएंगे। देन आफ्टर बोर्ड में आने वाले संभावित जो क्वेश्चंस हैं लास्ट में उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखना बहुत कंपलसरी है आपके लिए। और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करते रहें ताकि हम ऐसे ही और मोटिवेशनल और आपके लिए परीक्षा में उपयोगी वीडियोज़ लाते रहें। तो आप इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दें जिससे हमारी वीडियो जैसे ही अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ओके, On the face of it, it is written by Susan Hill. The introduction of the chapter, the play portrays a friendship between an old man and a teenage boy named Derry. Mr. Lamb's garden. Mr. Lamb expresses pleasure to see him. Derry has a burnt face and therefore avoids company. Mr. Lamb encourages him to love life and pupil. He himself has a thin leg and assures Derry that he enjoys pupil's company. Derry loves Mr. Lamb's company. He goes back to him and expresses his wish to give company to Mr. Lamb. His mother disagrees, but he still comes back to Mr. Lamb's garden. There he sees Mr. Lamb falling on the ground after he tries to get apples from trees. He starts weeping. We are moved to see his attachment with Mr. Lamb, who gave him an inspiration to love himself despite the atrocities of the world. Guys, ये जो प्ले है ये दो लोगों के बीच का फ्रेंडशिप, एक ओल्ड मैन है और एक छोटा सा बच्चा है 14 साल का, उसके बीच का फ्रेंडशिप के बारे में बताता है। जो बच्चा है डेरी नाम का, वो मिस्टर लैम के गार्डन में एंटर्स करता है दीवार को फांद करके, और लैम जब उसको देखता है तो वो बहुत खुश होता है। डेरी का जो चेहरा एक तरफ से जला हुआ है एसिड के द्वारा, वो किसी की भी कंपनी को स्वीकार नहीं करता है, उससे बचना चाहता है, लेकिन मिस्टर लैम उसको कहते हैं कि वो लोगों को और उनके जीवन को लाइक करना शुरू करे, क्योंकि उसकी खुद की अपनी एक टांग है, वो टीन की है, यानी कि उसकी टांग एक विस्फोट में उड़ गई थी। डेरी लोगों की कंपनी का एंजॉय करता है और उससे भी कहता है कि वो हमारे साथ बैठे लोगों से बातचीत करे, आए। अब जब डेरी वापस घर जाता है और अपनी माँ को ये सारी चीज़ बताता है तो माँ उससे असहमत होती हैं और कहती हैं कि वापस वो वहाँ नहीं जाए लैम के गार्डन में। लेकिन वो वापस पहुँचता है क्योंकि वो वचन दे के आता है और कहता है कि मैं वापस आ गया। और लैम को जब वहाँ गिरा हुआ देखता है, जहाँ लैम ऊपर से एप्पल्स को नीचे गिरा रहा था पेड़ से, तो वो नीचे गिर पड़ता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। डेरी बैठ करके वहाँ रोना शुरू कर देता है।
तो ये एक अटैचमेंट है जो दिखाया है एक छोटे बच्चे का उस एक वृद्ध व्यक्ति के लिए, जिसने उसे प्रेरणा दी कि आखिर इस दुनिया में कैसे जिया जाए। दिस इज द इंट्रोडक्शन of the chapter. Now we will discuss the main character of this chapters. There are only two main characters. Number one, Derry, who is about 14 years, and the second is Mr. Lamb, who is an old pupil and has a tin leg. First, Derry. Derry is a boy of 14 with a badly burnt face in an accident that left him scared. All he says is, I got acid fall down that side of my face and it burnt it all away. It ate my face up. It is because of that people treat him differently. He complained the people fear and pity him, as usually tries to actively avoid him. This has led Derry to isolate himself and create a tough reserve exterior for him. He wants to avoid being hurt, so about everyone he can, and when he does interact with other pupils, he is both very and angrily defiant. He also realizes the way others see him, and he seems to consider himself monstrous because of his disability. He assumes that the world is harsh and alienating place and act accordingly. Example, climbing over Mr. Lamb's garden bell instead of checking the gate, which is always left open. At first, Derry assumes Mr. Lambs will treat him like other people, but he is soon intrigued by the old man's peculiar question and open nature, suggesting that the Derry does in fact long human connection, even as he fears. Potential point. Pain of being rejected. This is confirmed when Derry runs away from his mother, who is suggested treat him as a dehumanizing manner to go back to the Lamb's garden where he wants to sit and talk with the old man. यहाँ पर डेरी के बारे में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बताई है कि डेरी एक छोटा बच्चा 14 साल का एक्सीडेंट हो गया, उसका एक जो है एसिड की बोतल उसके ऊपर गिर गई और वन साइड का उसका जो फेस है वो बिल्कुल जल गया और इससे वो बड़ा भयानक और क्रूर सा दिखने लगा और लोग उसे देख करके डर जाते थे। लोगों के व्यवहार से वो बचना चाहता था और लोगों की कंपनी से दूर रहना चाहता था और वो नहीं चाहता था कि उससे देख करके लोग डरें और इसलिए लोगों की कंपनी से वो दूर रहना शुरू कर दिया। उसने रियलाइज़ किया कि वो बड़ा ही क्रूर और भद्दा एक राक्षस के जैसा दिखाई देता है। ये जो डिसेबिलिटी उसके अंदर आई है ये बड़ा ही एक राक्षसी दैत्याकार सा लगता है वो और लोग इसीलिए उससे डरते हैं। लेकिन तभी मिस्टर लैम के गार्डन में वो पहुंचता है अचानक से दीवार फांद के और जबकि उसका गेट हमेशा खुला रहता है, उसने गेट को चेक नहीं किया और लैम ने उसका स्वागत किया वहाँ पर डेरी का, क्योंकि लैम लोगों की कंपनी को एंजॉय किया करता था, लोगों से क्वेश्चन पूछता था, उनसे अपनी नॉलेज को बढ़ाता था और यही सजेशन उसने डेरी को दिया कि लोगों से डरने की आवश्यकता नहीं है, वो लोगों की कंपनी को ज्वाइन करे वरना इस दुनिया में जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और उसकी माँ ने भी उसे मना किया कि वो लौट करके वो लैम के पास न जाए,
लेकिन फिर भी उसने माँ को कहा कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, कि मैं वहाँ बैठना चाहता हूँ, लोगों से बातें करना चाहता हूँ और कुछ सीखना चाहता हूँ। ये मेन कैरेक्टर मिस्टर डेरी का है। अब मिस्टर लैम हैं जो सेकेंड अदर कैरेक्टर है आपका यहाँ पर। मिस्टर लैम is an old man with a big house having a decent garden full of flowers, weeds, and crab apples. His one leg is blown off in the war, and so he has a tin leg. The gate of his garden is always open. And there are no curtains on the window. Everyone who come into the garden is always welcomed by him. He has become a wise man by reading books and sitting in the garden. The sweet notes of the birds and buzzing of bees give him a charm of life. Mr. Lamb has got over his physical impairment. With the passage of time, he has learned how to keep himself balanced for plucking crab apples. Children call him Lamby Lamb, but he is not disturbed by it. Rather, he takes it very lightly. So they are not afraid of him and come to his garden for fruits and for his part. Mr. Lamb enjoys their company. Derry enters in his garden by climbing up on the wall, and he thinks it is to be lonely place. Immediately, Mr. Lamb questions and tells that the door is always open. Both discuss a lot, but in the end, Mr. Lamb tragically falls from the ladder while plucking crab apples and dies. सेकेंड जो मिस्टर लैम्ब है, ये एक बूढ़ा आदमी है, इसकी एक टीन की लेग है और इसके पास अपना एक बड़ा गार्डन है, एक बहुत बड़ा घर है जहाँ कोई भी पर्दे नहीं लगे हुए हैं, किताबों से भरा हुआ है और लोगों के साथ बैठता है। उसकी टांग जो है एक एक्सीडेंट में उड़ गई थी और लेकिन वो फिर भी बड़ा जिंदा दिली के साथ लोगों के साथ बैठता है, बातें करता है, किताबें पढ़ता है और जिसके गार्डन में जो एप्पल्स लगे हुए हैं एप्पल्स के जो पेड़ हैं उन पर चढ़ के पेड़ों को चढ़ कर के सेब को तोड़ना भी उसने सीख लिया है। लेकिन एक दिन अचानक से डेरी उसके गार्डन में एंटर करता है, लेकिन उसको देखते ही कहता है कि गेट तो हमेशा खुले रहते हैं। और एक दिन वो दोनों काफ़ी बैठ के डिस्कस करते हैं, उसको भी जीने का मकसद सिखाता है मिस्टर लैम। और एक दिन अचानक से एक इंसिडेंट होता है, लेडर गिर पड़ती है जब वो एप्पल्स को प्लकिंग कर रहा था और वो नीचे गिर पड़ता है और उसकी मौत हो जाती है। इस प्रकार से ये दो मेन कैरेक्टर्स और इन दोनों मेन कैरेक्टर के साथ में इसकी समरी भी इसी प्रकार है। लेकिन अब मैं डिस्कस करूँगा कि लास्ट ईयर जो क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर का सैम्पल पेपर, व्हाट इज़ द कॉमन बिटवीन डेरी एंड मिस्टर लैम? यू नो वेरी वेल, both are physically impaired person. Mr. Lamb has a tin legs because his leg was blown off by a bomb in the war, but Derry was a young boy whose face was burnt due to acid. एसिड की वजह से उसका चेहरा जल गया था और उसकी एक टांग उड़ गई थी। दोनों ही फिजिकल इम्पेयर्ड पर्सन थे। दीज आर द कॉमन। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज इट एट अप माई फेस, इट एट मी अप, हु सेड दीज वर्ड्स एंड वाई? अब ये वर्ड्स तो उसने कहे थे मिस्टर डेरी ने, और क्योंकि उसके चेहरे पर क्या गिर गया था? एसिड गिर गया था, उससे पूरा चेहरा उसका जल गया था। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाई डज डेरीज मदर नॉट वांट हिम टू गो बैक विजिट मिस्टर लैम? तो डेरी की माँ जो है उससे क्यों मना करती है कि वो मिस्टर लैम के पास ना जाए? When Derry told his mother about Mr. Lamb, then he refused him to return to him because she thought that it would be not
like it seems to him. Mr. Lamb is not a good person. As mother, she was concerned about his son and didn't want to see him upset. So she didn't want to allow him to go the stranger. अब लॉन्ग क्वेश्चन जो लास्ट ईयर आया स्टूडेंट्स, फर्स्ट मिस्टर लैम कॉस्ट डायरेक्ट his friend while Derek refused his affirmation. Would you consider their relationship with each other as friendship? Support your answer with reference to the instance from the text. And the second question is, Derry and Mr. Lamb both are victim of physical impairment, but their attitude toward life are completely different. Elaborate. अब दोनों ही फिजिकल इम्पेयर पर्सन थे, लेकिन जो एटीट्यूड थे वो दोनों के अलग थे। लैम्ब का जो एटीट्यूड था वो जीवन जीने के लिए पॉजिटिव वे था, लेकिन डेरी जो है नेगेटिव था दुनिया से। यही इन दोनों के बीच में डिफरेंट है। Mr. Lamb taught Derry many things, concealed him, motivated him, changed the way of viewed his taught him, or to appreciate the celebrate life, being equating weeds of flowers, not to focus on his shortcoming handicap, look at the word which is beautiful, not to indulge in self-pity, not to be open-minded. Hatred is worse than acid. To love the outdoors and nature, enjoy watching and listening to sight the sound of the nature, to have confidence to face life's challenges. Mr. Lamb treated him as a normal individual, did not show fear or pity. These are some points which make differ both attitude. स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी में कुछ इम्पॉर्टेंट। हु इज मिस्टर लैम, हाउ डज डेरी गॉट इनटू हिज गार्डन। तो लैम कौन है? लैम एक बूढ़ा आदमी है जिसकी लोहे की टिनकी लेग है और उसकी एक एक्सीडेंट में वॉर में टांग उड़ गई थी और उसका गार्डन है, पास में उसका घर है और बहुत सारे एप्पल्स के पेड़ हैं। दूसरा क्वेश्चन है, डू यू थिंक ऑल दिस विल चेंज डेरीज एटीट्यूड टुवर्ड मिस्टर लैम। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज दैट ड्रॉन डेरी टुवर्ड मिस्टर लैम इन स्पाइट ऑफ himself. Some important questions most expected for 2022. अब यहाँ एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। सो इट इज सिंस आई एम, तुम्हारी क्लास है, आउट ऑफ हियर, स्टूडेंट्स ये आपको सॉल्व करनी है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और ये मैंने आपको दे दिया है। सॉल्व करके आप अपने आंसर मुझे भेजिएगा। ओके, ना चैप्टर असेसमेंट भी इसमें लगाया है मैंने और ये चैप्टर असेसमेंट भी आपको सॉल्व करना है। ओके, दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। ओके, गुड बाय।